Hello students, I am Priyanka Jaiswal and this is your syllabus of chemistry. Okay, so in your section number 1 there is a syllabus of inorganic chemistry. So here unit 1 consists of coordination chemistry, then unit 2 consists of isomerism in complexes and oxidation and reduction. Then calorimetry and spectroscopy is a unit number 3 and another one part is separation techniques. Okay, then inorganic polymers. So this is inorganic chemistry. From this syllabus I am taking unit number 1, that is coordination chemistry. Okay, so let us see what is coordination chemistry. Here we are studying the coordination chemistry. From your 12th standard you are studied about the coordination compounds. तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? अगर हम रिकॉल करते हैं तो 12th में हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक अलग से चैप्टर था जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसके बारे में नॉलेज था या फिर वहाँ पर आपको दिया था. ओके, सो इन योर फर्स्ट ईयर सिलेबस you are studied about the ionic type of bonds and covalent bond. Okay, now we are going to study here coordination bonds. Okay, यहाँ पर एक और टाइप का बॉन्ड होता है जो कि क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो हम ये यूनिट में पढ़ने वाले हैं. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है, दैट मीन्स दिस इज द कंपाउंड that possess which type of bond? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. उसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है. और जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. So what is coordination compounds? The compound possessing coordinate bond, that is known to be a coordination compound. So first of all ये जो coordination compound है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर किया? So here in 1798 में Tazard, the scientist Tazard discovered that coordination compound. So how he observed that coordination compound? First of all he take ammonical solution of cobalt chloride. क्या लिया उसने? ammonical solution of cobalt chloride and it is deposited on orange colored compound. orange color compound जो होता है उस पर उसने क्या किया है? डिपॉजिट किया है. देन इट वॉज फाउंड दैट इट हैव अ कंपोजिशन ऑफ COCl3.6NH3. उसने क्या लिया था कंपाउंड? कौन से कंपाउंड लिया था? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड. ही टेकन अमोनियम solution of cobalt chloride and it can deposited on orange colored compound and he discovered that it has a composition of COCl3.6NH3. that means he has two salts
he make two salts fully saturated compounds, or it has two fully saturated compounds or salt seen in unusual nature. And when he study about the bonding of that two complex compounds, then he discovered that the bonding in this compound, it is complex in nature. इसकी जो bonding थी वो कैसी थी? Complex थी. So that he named that compounds. ये जो salt उसको find हुए थे, इसको इसने क्या नाम दिया? Complexes. He give that name, that is complexes. So now here we are understand that what is coordination compound. So coordination compounds are that compound which possess coordination bond. It is discovered in 1798 by Tazard. Okay, Tazard take ammonical solution of cobalt chloride which is deposited on ऑरेंज कलर सॉल्यूशन, मीन्स एक सॉल्ट को दूसरे सॉल्ट पे उसने क्या किया? डिपॉजिटेड किया. देन इट टेक ओवरनाइट. ये दो कंपाउंड्स ने ओवरनाइट एक दूसरे से डिपॉजिट रहे. देन आफ्टर दैट टैजर्ड कंक्लूड दैट ही हैज़ टू सॉल्ट्स और two fully saturated compounds, that is COCl3.6NH3. Okay, so when he study about this compound, he conclude that the bonding between these compounds is quietly complex, so that he gave the name, that is complexes. Okay, here now the second term, that is double salt. अब देखिए डबल सॉल्ट क्या होता है यहाँ पर. अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लिया, अभी डबल सॉल्ट क्या है वो देखते हैं. सो when two saturated compounds are combined, it is possible to give combination of two. अगर हम दो salts लेते हैं, अगर कोई एक salts लेते हैं, salts को क्या करते हैं? Saturated salts ले रहे हैं तो और दूसरे उनको combine कर रहे हैं तो क्या होता है? combination मिलता है salt का. ऐसा हमारा मानना है कि कॉम्बिनेशन मिलेगा. लेकिन जब क्या होता है, एसिड और बेस जो होते हैं, बेस और एसिड जो होते हैं जब एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तो आपको भी पता है क्या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है. देन वहाँ पर क्या बनता है? सॉल्ट भी बनता है प्लस वाटर बनता है. लेकिन यहाँ पर देखिए एक सिंगल सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? फॉर्म होता है. बट अगर हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्ट्स ले रहे हैं, दो डिफरेंट काइंड्स के सॉल्ट्स ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं या फिर डिज़ोल्व कर रहे हैं एक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है? एक दूसरे से वो रिएक्ट होते हैं. और अगर हम क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे सॉल्यूशन सॉल्वेंट्स को मिक्सचर में से, तो एक तीसरा ही कंपाउंड या तीसरा ही सॉल्ट जो है वो फॉर्म होगा. ओके, थर्ड सॉल्ट जो फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? जो कि एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन का होगा, कंबाइनिंग सॉल्ट से बिल्कुल भी अलग होगा. दैट इज़ नोन टू बी डबल सॉल्ट. दैट मीन्स जब हम दो सॉल्ट जो होते हैं उसको एक दूसरे से कंबाइन करते हैं सॉल्वेंट्स में, उसके बाद में हमें जो थर्ड कंपाउंड या थर्ड सॉल्ट जो मिलता है दैट इज़ नोन टू बी अ डबल सॉल्ट. ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल भी लेते हैं कि डबल सॉल्ट जो होता है वो उसका एग्जांपल क्या है. जैसे कि हमने क्या लिया है यहाँ पे?
फेरस सल्फेट लिया है, ओके, FeSO4. देन वी टेक NH4 2SO4. तो अभी हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए FeNH4 2SO4 2.6H2O. ये भी एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है, ओके. ये दोनों एक सॉल्ट है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट हमने लिया है. दोनों सॉल्ट्स को क्या किया है हमने, इसका एक होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार किया है. देन होमोजीनियस सॉल्यूशन जब फॉर्म होगा, एक दूसरे में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिलीज़ होगा. वाटर रिलीज़ हो गया, इवेपोरेट हो गया. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, देखिए फेरस, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, फेरस अमोनियम सल्फेट. फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि एक क्या है, डबल सॉल्ट है. ये किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, दो सॉल्ट्स हमने लिए हैं, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट. इसके कॉम्बिनेशन से थर्ड जो सॉल्ट या फिर थर्ड जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ नोन टू बी अ डबल सॉल्ट, ओके. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट. So this salt is dissolved in water and dissociated as, यहाँ पर अगर वाटर में हमने डाले तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, यहाँ पर Fe पॉजिटिव का आयन फॉर्म होगा, Fe2 पॉजिटिव. देन अगेन क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, NH4 पॉजिटिव. देन उसके बाद में और यहाँ पे क्या है, SO4 है. तो यहाँ पे क्या, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो SO4 2 निगेटिव. इस तरीके के आयंस वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में क्या होंगे, फॉर्म होंगे. इसके कई सारे एग्जाम्पल है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, K2SO4.Al2SO4 3.24H2O. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. ये किसका एग्जाम्पल है, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है. अगेन एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, KCl.MgCl2.6H2O. ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो है वो डबल सॉल्ट के आपको हमेशा देखने को मिलेंगे. ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो डबल सॉल्ट के जो है एग्जाम्पल है. अब आपने डबल सॉल्ट देख लिया. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं और वो क्या होते हैं. यहाँ पर हमने आज पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो किस तरीके से फाउंड हुए. टैजर्ड ने 1798 में एक अलग टाइप का जो, दैट मीन्स टू सॉल्ट्स को मिक्स होने के बाद में उसमें से जो फॉर्म हो रहा है थर्ड कॉम्प्लेक्स या फिर थर्ड जो कंपाउंड है, उसकी स्टडी करने के बाद में उसके ध्यान में आया कि देयर इज़ अ बॉन्डिंग विच इज़ नॉट एज अ ionic bonding or covalent bonding. Then what type of bonding is there? There is a complex bonding, and so that he gave the name that is complex compound. Okay, complexes. Okay, so here these are the complexes. यहाँ तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है किस तरीके के हो सकते हैं ऐसा हमने अज्यूम किया है. देन यहाँ पर डबल सॉल्ट के एग्जांपल देखे हैं, किस तरीके से डबल सॉल्ट जो होता है वो फॉर्म होता है. ये हमने देख लिया. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं और उसके एग्जांपल क्या है. ओके.